Assalamualaikum everyone. This is me Aisha and you're watching Aishians. I hope you are I hope you all are having a really beautiful life and I wish you all a very happy and beautiful month of Ramadan. So without having a very long introduction, let's just start our real content. GPT is going to ask me few questions and I'm going to answer that. I'm really excited for this one. Anyways, so these are the list of questions I already have here. I have 20 questions and let's start it. So the first question I have here is, what inspired you to start content creation and what keeps you motivated? Okay, so the actual reason I started content creation was that I always wanted to do this. Like content creation was one of the few things in my life जो कि मुझे हमेशा से करनी थी. I was always like that content creation मुझे करना है. Like in my student life before metric, जब like I used to be in school, तब से मैं शुरू से मुझे था कि यार कंटेंट क्रिएशन करनी है और मुझे पता था आई हैव दैट पोटेंशियल दैट आई कैन एक्चुअली came in front of the camera and I can talk and I can have a good family, a good online family and a good online presence. So I always know somewhere in my mind that I love this and I want to do this. So yes, I started this, and what keeps me motivated is actually the love and the support I get from my people, from Instagram, from YouTube. Next question we have here is, if you could describe yourself in 3 words, what would they be? That's actually a tricky question. But you know what, the fun fact of this video is actually it's going to be a rapid fire with GPT, so we'll just be quick. The 3 words I would say for myself, kind, honest and a bit aggressive. यही आ रहे हैं मेरे दिमाग में अभी 3 लफ्ज़ भाई. Let me just back, कोई आया डोर पे. Okay, yeah, so I'm back. Let's move to another question. And I'm so sorry for the noise of construction. Like ये हमेशा होता रहता है. मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, especially when I started shooting, तब तो लाजमी होता है. खैर, ignore that. Third question is, what's one thing people assume about you that's not true? Is that I am not a foodie person. Like people actually think that I'm not a foodie person, I'm a really boring person, but I'm actually not. Like I love food and like I'm a home foodie person actually. लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे खाना ही नहीं पसंद. मतलब ऐसा, मतलब मेरे कोई टेस्ट बर्ड्स ही नहीं है, like, बट ऐसा नहीं है. आई हैव गुड टेस्ट बर्ड्स, लेकिन मुझे अच्छा खाना अच्छी जगह का ही पसंद है. यूजुअली मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है बिकॉज आई लव कुकिंग. तो मुझे ख़ुद कुक करके खाना या अम्मी के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है. आई प्रेफर दैट मोर, ऑल्सो बिकॉज आई एम अ बिट हेल्थ कॉन्शियस पर्सन एज वेल. तो बस ठीक है. व्हाट्स अ वियर्ड और अनएक्सपेक्टेड टैलेंट यू हैव? इट्स दैट आई कैन स्पीक in other tones. It's like I can speak in childish tone. It's like, यार पता है आज तो ना पानी नहीं पिया मैंने पूरा दिन, रोज़ा था ना मेरा, इसलिए. इस तरह से I can speak in childish tones and in bit different ways. So that's a weird talent I believe I have. And I can also speak in cartoonic voice. जैसे यार मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए इस तरह से So खैर, if you weren't doing BBA, so what are the career you would have chosen? Yeah, if I haven't doing BBA, then I might have chosen media studies because as you all know, I like media, social media and such sort of thing. तो मैं शायद वो कर रही होती, या शायद मैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस की तरफ गई हुई होती, लाइक CA बिकॉज़ उस टाइम पे मुझे फाइनेंस का काफ़ी शौक़ था. लेकिन नाउ आई एम ग्रेटफुल कि मैंने वो चूज़ नहीं किया बिकॉज़ नाउ आई रियलाइज़ कि फाइनेंस मेरा कोर नहीं था, क्योंकि मैंने मार्केटिंग चूज़ करा है BBA में. सो आई रियलाइज्ड इट आफ्टरवर्ड्स, सो आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट.
Okay, anyways, next is, what's a life lesson you learned the hard way? It's that you should prioritize yourself always first. It might, it might hurt like selfish, but ऐसा नहीं है. जब तक आप ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं करोगे, आप दूसरों के भी काम नहीं आ सकते. बिकॉज़ अगर आप खुद हेल्दी नहीं हैं, आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप किसी और को क्या खुश रखेंगे, किसी और के लिए क्या अच्छा करेंगे. एंड ऑल्सो कि फिर ऐसा भी होता है लाइफ में कभी कभी दैट यू फील लाइक व्हेन पीपल आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ, सो यू फील दैट यू डिड बैड फॉर योर ओन सेल्फ, कि आपने ख़ुद को वैल्यू नहीं की और लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करते. तो एटलीस्ट आप ख़ुद को तो वैल्यू करें ना, कोई करे ना करे. और ट्रस्ट मी, व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर ओन सेल्फ, then ultimately the people surround you also do. So yes, that's the point I learned in my life the hard way. Okay, anyways, next question is, what's the biggest challenge you have faced in your career so far? What's the biggest challenge? Let's be honest, it's transportation. मुझे बहुत मसला होता है. Like I travel in public transport, तो वो सबसे बड़ा मसला है मेरी लाइफ का. Yes. How do you manage stress when life gets overwhelming? यार ये एक स्किल है जो मैंने अभी तक नहीं सीखा है. ऑनेस्टली ये मुझे सीखना है. मैं अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ लाइफ में. मैं जब ओवरवेलमिंग सिचुएशंस आती है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अ लॉट ऑफ टाइम. सो मैं कहूँगी सवाल का जवाब ये कि मैंने नहीं सीखा है, अभी तक मैनेज नहीं करना आया. What's the most savage or rhubarb like moment you have had in real life? Oh my god, the reason GPT used the word rhubarb is actually, as I told you, कि मैं GPT बहुत यूज़ करती हूँ और GPT को मेरे बारे में बहुत कुछ पता है. तो जैसे मैंने वो rhubarb की एक मिमिक्री अपलोड की थी लेकिन बैक फ्यू डेज़ अगो, तो उसमें मैंने कैप्शन पूछा था GPT से. सो व्हेन वी आस्क कैप्शंस, तो हम पूरी डिटेल बताते हैं GPT को, भाई इस तरह सॉर्ट ऑफ कंटेंट है, इस तरह की वीडियो है, ये शॉर्ट है, तो इसका क्या कैप्शन होना चाहिए, सजेस्ट मी फ्यू. तो इसलिए इसको पता है. खैर, लेट्स टिक बैक टू द क्वेश्चन, सेवेज मोमेंट क्या था. यार वैसे तो बहुत सारे हैं, बिकॉज आई एम क्वाइट सेवेज AF पर्सन. But let me think. Recently मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और तो मेरे ऑफिस में एक बंदी होती थी. लाइक इट वाज शी-मेल. शी वाज अ शी-मेल. आई एम सॉरी फॉर यूजिंग इट. शी वाज अ शी-मेल एंड मैंने क्या करा कि अच्छा, आई हैव रियली गुड कॉन्वर्जेसन विद हर. मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, आज भी है, हम बात करते हैं अक्सर. एंड मतलब मुझे उसका माइंडसेट बहुत अच्छा लगता था शुरू से. सो खैर, एनीवेज हुआ ये, ऐसे मजाक में वो चल रहा होता है ना, रैपिड फायर दोस्तों के बीच, फटाफट से जवाब दे रहे होते हैं एक दूसरे को, सैवेज मोड होता है, मजाक चल रहा होता है, हंसी मजाक का माहौल होता है. तो उसमें उसने मुझे कुछ कहा, समथिंग लाइक दैट कि मुँह धो के आ जाती है, ऐसा कुछ करके. मैंने जवाब पलट के देखा, मैंने तुमने शक्ल देखी है अपनी, और मैंने ये कह दिया. अच्छा, उसको बिल्कुल ये चीज़ फील नहीं हुई क्योंकि वो भी मजाक कर रही थी मेरे साथ और उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी थी, तो शी वॉज ओके विद दैट. बट उसके मुझे अच्छा मेरा क्या है, मुझे इंस्टेंट रियलाइजेशन हो जाती है. मैं उस वक्त तो मैं चली गई, मैं पानी भरने जा रही थी बॉटल्स में ना. तो उसके बाद मैंने केम बैक, मैंने इंस्टेंटली उसको आके सॉरी बोला. मैंने कहा यार तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो शी वाज लाइक नहीं पागल है, इस तरह करके उसको नहीं लगा था. इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है. सो शी हैडंट माइंडेड एज सच, बट मुझे लगा था, तो खैर मैंने सॉरी कह दिया था. व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ? माई अल्टीमेट गोल इन लाइफ, मतलब मैं सच बताऊँ, आई ऑलवेज़ वॉन्ट टू डू समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ. मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस ना स्पेंड हो. अभी तक तो मैंने कुछ ख़ास ऐसा मुझे नहीं लगता मीनिंगफुल किया है.
बस चल रही है अभी तक तो ज़िंदगी, बट आई वांटेड टू डू समथिंग रियली मीनिंगफुल एंड समथिंग बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी. कुछ ऐसा करूँ कि कुछ बेटरमेंट लाऊँ मैं सोसाइटी में. मतलब मैं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट लाना चाहती हूँ. यस, दैट्स माई अल्टीमेट गोल कि इवन इफ आई डाई, so after my death there is something beneficial behind me left for my people in the world. Like by my people I mean the people living in the world. I don't know why, but ये my people वाला मेरा term बहुत ज़्यादा use करती हूँ मैं. तो खैर, that's the whole essence. And yeah, what's something you used to believe in but later changed your mind about? Oh, okay. What's something I used to believe in earlier but later changed my mind about? तो अच्छा, बेसिकली जीपीटी ये पूछ रहा है कि मैं किस चीज़ में बिलीव करती थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया है कि नहीं, मैं जिस चीज़ में बिलीव करती थी वो गलत था. तो ऐसी कौन सी चीज़ थी? हाँ, ये वही मैं कहूँगी अगेन कि मैं ख़ुद को प्रायोरिटाइजेशन में नहीं रखती थी और मैं ये समझती थी कि ख़ुद को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज़ करना इज़ सेल्फिशनेस, वाइल इट्स एक्चुअली नॉट. और मैंने आपको बताया इसके रीजंस, बिकॉज अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दे सकते देन यू कैन नॉट डू एनी गुड फॉर एनी वन. सो इट्स एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ. So yes, okay, let's have a water break for a moment because I'm being thirsty. Done. So the next question we have here is, what's something, no, if you could swap lives with any public figure for a day, who would it be and why? वो वाला क्वेश्चन रिपीटेड था. आप ये ना समझिए कि मैं बीच में कुछ स्किप कर रही हूँ. मैं कुछ स्किप नहीं कर रही हूँ. आई एम रियली ऑनेस्ट राइट नाउ. तो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ आई कुड स्वैप माई लाइव्स विद एनी पब्लिक फिगर फॉर अ डे, हु वुड इट बी एंड व्हाई? यार ऑनेस्टली ये सवाल सुनते ही जो मेरे जहन में पब्लिक फिगर आ रहा है दैट्स हानिया आमिर. एंड उसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ फेम या शी इज़ अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस and everybody loves her. The reason actually is because I love her energy level, the excitement and the ये वाला जो उसमें है ना एक boost of energy का, वो मुझे बहुत पसंद है. I really love the people who are excited in their lives. मतलब मुझे लगता है कि somewhere मेरी थोड़ी excitement lose हो गई है, like lost हो गई है actually. Lose is not the right word. Lost हो गई है. And I feel, I don't know, life experiences and everything, बट हाँ मुझे लगता है यार उसकी एनर्जी लेवल ना बहुत हाई है. तो मैं चाहती हूँ मतलब एक दिन के लिए अगर उसकी लाइफ स्पेंड करूँ, मुझे वो एनर्जी लेवल फील करना है, वो बूस्ट अप फील करना है. So yes. Next here, what's your favorite memory from school or university? From school or university? From school I have numerous amount of memories, like the school picnics. Oh my god, I used to love that part. मैं हर पिकनिक पे जाती थी, the fun fact, and मुझे बहुत मज़ा आता था. यूनिवर्सिटी की कोई अच्छी मेमोरी, ओके, द इवेंट आई ऑर्गेनाइज्ड. वैसे तो बहुत सारे किए हैं, बट एक जो बहुत स्पेशल था that was TEDx, because it was the really first event I organized in my university. और मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें. It was a really good event. So yes, I could say that from school it's school picnic, and from university it's TEDx or other events as well I organize, because events organization is one of my hobbies. What's one thing you wish more people knew about you? What's that thing? यार हाँ ठीक है. Okay, I'll speak about it. देखो क्या है ना कि I am a friendly person, but I believe in personal space and boundaries. There are boundaries in life.
I'm not only talking about the physical boundaries, I'm also talking about the mental boundaries and mental space. So whether it's my friends or family or anyone, but with every person we have a specific boundaries and specific space, and I respect that other person respect my boundary and I respect theirs. तो मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा लोगों को पता हो कि जो मेरी बाउंड्रीज़ है ना वो एक मेरी वैल्यूज़ हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करो यार। मैं करती हूँ ना आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट। और देखो बाउंड्रीज़ ऐसा नहीं है कि इंसान चीख चीख के बताए तो पता चलेगा कि अच्छा भाई इस बंदे को ये चीज़ नहीं पसंद। आपका फिज़िकल ऑरा, आपकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस बता देती है दैट व्हाट्स योर बाउंड्री इज़। एक इंसान का चलना उठना बैठना, उसकी जो भी उसका जो भी ऑरा है वो बता देता है कि उसको क्या बात नहीं पसंद। ठीक है, अगर कोई कॉमन सेंस है ना, अगर कोई, मैं बहुत कॉमन सी बात करती हूँ, आपको पता है कि कोई बंदी है या कोई बंदा है इवन, वो अपनी प्राइवेट लाइफ डिस्कस करना उसको पसंद नहीं है। आपको पता है जैसी कोई प्राइवेट लाइफ की बात होती है वो बंदा खामोश हो जाता है। को हर इंसान हर चीज़ ऑब्जर्व करता है, ठीक है, प्लीज़ बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जर्व नहीं करते या हम बच्चे हमें समझ नहीं आता, सबको सब समझ आता है। जब आपको अपनी लाइफ समझ आ रही है ना, अपनी बाउंड्रीज़, अपनी वैल्यूज़, अपनी चीज़ें समझ आ रही है तो दूसरों की भी आती हैं। ठीक है, तो आपको पता है उसको नहीं पसंद प्राइवेट लाइफ डिस्कस करना, लेकिन आप कुरेद रहो कि अच्छा नहीं वो उसमें क्या हुआ था, अच्छा नहीं ये तो बताओ भाई, वो पिक्चर्स तो देखो भाई। क्यों करना है? नहीं करो ना, नहीं पसंद उसको नहीं करो, छोड़ दो। रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम लोगों में, कुछ लोगों में बहुत कम होती जा रही है हमारी सोसाइटी में, खैर होनी चाहिए। व्हाट्स द बेस्ट एंड वर्स्ट थिंग अबाउट वर्किंग इन कस्टमर सर्विस? देखो ये भी पता है जेपीटी को कि मैंने कस्टमर सर्विस में काम किया था, बिकॉज़ ये इसको इसलिए पता है क्योंकि अगेन कोई मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ होगा उस टाइम पे और मैंने डिस्कस करा होगा इससे। तो खैर मैंने कस्टमर सर्विस में मुझे क्या प्रॉब्लम थी जो मैंने फेस की है, इट्स अबाउट हैंडलिंग योर मूड। कि मतलब हैंडलिंग से मैं ज़्यादा कहूँगी डिप्लोमैटिंग। एक्चुअली जो डिप्लोमेसी हम यूज़ करते हैं ना जब कस्टमर सर्विस होता है ना, देखो वी हैव टू बी अ बिट डिप्लोमैटिक। कि अगर इवन इफ़ आई एम एंग्री, आई कैन नॉट शो माई एग्रेशन बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स कस्टमर इज़ एवरीथिंग। तो हम नहीं एग्रेशन शो कर सकते, राइट। सो वो जो डिप्लोमेसी है, वो जो इमोशंस की मैं कहूँगी, इमोशंस का कवर अप करना है ना, वो मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता है। बिकॉज समटाइम्स आगे वाला कस्टमर मुझसे अब्यूज़िव हो रहा है, अब मुझे अब्यूज़िव नहीं होना, मैं नहीं हो सकती अब्यूज़िव, तो उस टाइम पे आई हैव टू कंट्रोल माई एग्रेशन। और उससे ज़्यादा मुझे मुश्किल वो पार्ट लगता है जब मैं किसी पर्सनल लाइफ की अपनी प्रॉब्लम की वजह से एग्रेसिव हुई या मेरा मूड सैड है, बट व्हेनेवर आई हैव अ कॉल सो आई हैव टू पिक इट अप विद अ वेरी हैप्पी टोन, हे गुड मॉर्निंग एंड दिस एंड दैट। सो वो वाली चीज़ मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी कि ठीक है यार, अच्छा हैप्पी रहना पड़ेगा इन लोगों के साथ, फेक होना पड़ेगा। मुझे सबसे मुश्किल फेक होना लगता है। खैर अगला सवाल है, if you had the power to master any skill instantly, what would it be? It would be communication skills and confidence। दो चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब मुझे अपने लिए लगता है कि मुझे में ये चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी सी लैक हैं और ये चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। सो मुझे मतलब ये मैं चाहूँगी मैं फटाफट से सीख लूँ कुछ लोगों से जिनको मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्किल्स, जो कुछ ऑनलाइन एग्जिस्टेंस पीपल हैं। तो येस, दैट वुड बी दैट स्किल। What's the fashion, by the way it's question number 17, we have 20 questions so it's just 4 left. What's the fashion or beauty tip that's always works for you? If it's beauty tip then it's to drink a lot of water because guys, ऊपर लगाने से कुछ नहीं होता। whatever you are taking inside you, that's the most important thing. So yes, drinking a lot of water always helps me for my beauty, whether it's a pimple, my skin or anything. How do you handle criticism, especially in your content creation journey? यार देखो, कोई भी चीज़ आपको तब डिफ़िकल्ट लगती है व्हेन यू टेक इट पर्सनली। ठीक है, एक तो मैं पर्सनली नहीं लेती,
मैं ये सोचती हूँ अगर कोई क्रिटिसाइजिंग कमेंट कर भी रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बंदा किसी नेगेटिव जोन में हो सकता है या बंदी किसी नेगेटिव जोन में हो सकती है. इट माइट बी यू नो उसका मूड ख़राब है या वो है ही नेगेटिव पर्सन. होते हैं ना कुछ नार्सिसिस्ट टाइप के लोग, तो वो ऐसा इंसान है, तो ये हो सकता है. या फिर मैं अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फिर मैं ये करती हूँ कि मैं फ़न फैक्ट्स में उड़ा देती हूँ, मतलब जोक हंस देती हूँ. मैं अपनी क्रिटिसिज्म पे, जो ऑनलाइन क्रिटिसिज्म होता है, जो कमेंट्स आते हैं कुछ ऐसे, मैं उन पे हंस देती हूँ. मैं हंसने वाला वो जो आंसू यहाँ से आते हैं ना, वो वाला इमोजी डाल देती हूँ. इवन आई रिप्लाई ऑन दीज कमेंट्स, तो मैं वो कर देती हूँ. और भाई सामने वाला बंदा भी खुश, वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रही हूँ, मस्त है. तो खैर ऐसे हैंडल करती हूँ मैं. अच्छा अगला है, व्हाट्स वन थिंग ऑन योर बकेट लिस्ट दैट यू रियली वांट टू डू. यार आई रियली वांट टू ट्रैवल. यस, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ. मैं अपने अंदर शौक़ भी पैदा करना चाहती हूँ ट्रैवल. मतलब मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ है, बट मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ बहुत ज़्यादा. इवन इफ़ इट्स यू नो इट्स अबाउट जस्ट गोइंग टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव अ लंच और अ ब्रंच विद माई फ्रेंड्स, आई प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. तब मुझे होता है यार क्यों जाना है, घर पे बैठो, फ़ोन यूज़ कर लो, यू नो बिंज वॉच कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो, कोई सीरीज़ वॉच, कुछ भी कर लो, जाना नहीं है. तो माई फ्रेंड्स हेट दिस पार्ट अबाउट मी. तो ये वाली चीज़ मैं चाहती हूँ ज़रा मुझ में बिल्टअप हो जाए, थोड़ा मैं सोशलाइज हूँ लोगों में, बिकॉज होना चाहिए यार. If you could give advice to, oh that's the last question but not the least one, if you could give advice to your younger self, what would it be? वैसे तो I'm actually really young to answer this question, but ठीक है. What would it be? More expressive. Even if someone is saying to laugh, you know, in a lighter tone, don't laugh loud. What will people say? Don't accept this. ठीक है, ये accept नहीं करना है. Laugh out loud if you are feeling to. You know, have a big smile if you are feeling to. If you are having aggression and you know you want to take it out, बाहर निकालो. Be expressive. Even if it's you are sad, रोने का दिल चाह रहा है रो लो, हंसने का दिल चाह रहा है हंसो, चिल्लाने का दिल चाह रहा है चिल्लाओ, एक्साइटेड हो रहे हो एक्साइटमेंट शो करो. तो यू नो एक्सप्रेसिव हो. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. So yeah, that was it for today. It was a bunch of 20 questions. I loved shooting this part. Oh my god, इतना मज़ा आया मुझे, इतना मज़ा आया कि बस. अगर आप लोगों को भी मज़ा आया है तो कमेंट्स करें प्लीज़. And yeah, that was it for today. Take care of yourself and have a really nice day and the whole month and the whole year, like, and the whole life. Anyways, we will get back very soon inshallah. And yeah, till then, bye bye, Allah Hafiz.